to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, to his teacher, to all the spiritual teachers, with great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, beings of knowledge, beings of wisdom. We humbly invoke the divine guidance, divine help, and divine wisdom in not only understanding the book, getting its wisdom and the secrets of living a peaceful, happy, and successful life, applying it in our life, remembering it when we need it. The thanks and so be it. Good evening, welcome everybody, नमस्ते, hope you are doing good. तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं सेशन 19 जिसका टॉपिक है योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी। उससे पहले छोटू सा रिकैप करेंगे अब तक हमने सेशन 18 में क्या किया है। तो जूलियन जो है अपने राइटर को, जॉन को बता रहा है, एक फेबल बताई थी उसने, एक कहानी बताई थी। उस कहानी में 7 प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, करेक्ट, उस कहानी में, जिससे वो लाइफ के लेसन्स बता रहे हैं, सीक्रेट्स बता रहे हैं एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ, एवर लास्टिंग हैप्पी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो उस कहानी में हमारा जो लास्ट वाला जो हमने प्रतीक देखा था, दैट वाज द पिंक वायर। ठीक है, सुमो, देयर वाज अ सुमो। उसी दौरान वो उन्हें 10 रिचुअल्स बताते हैं लाइफ के। ठीक है, तो रिमेनिंग आई होप, अगर ज्यादा समय लग जाता है 2 सेशंस के बीच में तो कीप वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। ओके, आई कैन टेल यू दैट सो दैट यू आर इन टच कि हम कहाँ पर थे। तो मैं सोचती हूँ एक बार हम वो फेबल पढ़ लेते हैं, काफी दिन हुए फेबल पढ़े, वो कहानी। तो जब हमें वो कहानी याद रहेगी तो हमें याद रहेगा कि उस कहानी में कौन सी चीजें क्या दर्शाती हैं। तो देयर आर 7 थिंग्स, 7 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ये कहानी है पेज नंबर 38 पर, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आई विल रीड इट फॉर यू। सो ही सेज दैट, ये आपको इमेजिन करना है, यू आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ मैग्निफिसेंट लश ग्रीन गार्डन। द गार्डन इज filled with the most spectacular flowers you have ever seen. The environment is supremely tranquil and silent. Savor the sensual delights of this garden and feel as if you have all the time in the world to enjoy this natural oasis. As you look around, you see that in the center of this magical garden stands a towering red lighthouse, 6 stories high. Suddenly, the silence of the garden is disturbed by a loud creaking as a door at the base of the lighthouse opens. Out stumbles a 9 foot tall, 900-pound Japanese sumo wrestler who casually wanders into the center of the garden. As the sumo wrestler starts to move around the garden, he finds a shiny stopwatch which someone had left behind many years earlier. He slips it on and falls to the ground with an enormous thud. The sumo wrestler is rendered unconscious and lies there, silent and still. Just when you think he has taken his last breath, the wrestler awakens, perhaps stirred by the fragrance of some fresh yellow roses blooming nearby. Energized, the wrestler jumps swiftly to his feet and intuitively looks to his left. He is startled by what he sees. Through the bushes at the very edge of the garden, he observes a long winding path covered by millions of sparkling diamonds. Something seems to instruct the wrestler to take the path, and to his credit, he does. This path leads him down the road of everlasting joy and eternal bliss. तो जब सुमो वो रास्ता लेता है तो इसके जो भी प्रतीक हैं, गार्डन है, लाइट हाउस है, सुमो है, फिर हिज प्राइवेट पार्ट इज कवर्ड विद अ पिंक वायर, उसका प्रतीक है, स्टॉप वॉच प्रतीक है, सिंबलाइज करता है कुछ। ठीक है, जब वो रास्ता लेता है और उसे एवर लास्टिंग पीस और जॉय मिलता है। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। दिस वॉज द फेबल। तो हमें ये कहानी याद रखनी है, फ्रेश ग्रीन गार्डन है। गार्डन क्या रिप्रेजेंट करता है, किसे याद है? माइंड, है ना, माइंड। लाइट हाउस,
लाइट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमें एटलीस्ट जब एक कहानी के माध्यम से क्यों, बता, जैसे अगर हमें एक कहानी याद रहती है तो हमें वो 7 पॉइंटर्स याद रहते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं लाइफ में, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज एक्सप्लेन दिस इन मोस्ट ऑफ द लेसन्स। चलिए लेट्स डू। या, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन एंड आई एम ऑडिबल। चलिए, परफेक्ट। चैप्टर 11 एंड सेशन 19, योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी। Well arranged time is the surest mark of a well arranged mind. सर Isaac Pitman। वापस पढ़ती हूँ। Well arranged time is the surest mark of a well arranged mind. तो अगर आपका माइंड वेल अरेंज्ड है तो आप बाहर जो आपका समय है उसे भी प्रॉपरली अरेंज करेंगे। यू नो व्हाट्स फनी अबाउट लाइफ? जूलियन आस्क्ड मी। टेल मी। By the time most people figure out what they really want and how to go about attaining it, it's usually too late. That saying, if youth only knew, if age only could, is so true. Is that what the is that what the stopwatch in Yogi Raman's fable is all about? Yes. The naked 9 foot tall, 900 pound sumo wrestler with a pink wire cable around his private parts slipped on a shiny golden stopwatch that someone had left in the beautiful garden. Julian reminded me. How could I forget? I replied, breaking into a grin. By now, I had realized that Yogi Raman's mystical fable, जो अभी मैंने पढ़ी, was nothing more than a series of memory pegs designed to teach Julian the elements of his ancient philosophy for enlightened living, while at the same time helping him remember it. I shared my discovery with him. The sixth sense of a litigate. You are right. My wise teacher's methods appeared odd at first, and I struggled to understand the significance of his tale, just as you wondered what I was speaking of when I first shared with you. But I must tell you, John, all 7 elements of the story। अभी देखिए कौन से 7 एलिमेंट्स, अगर आप एक कहानी याद रखते हो गार्डन वाली, तो कौन से मेन पॉइंटर्स हैं, अगर हमें वो याद रहते हैं, हम अपनी लाइफ को बड़े आसानी से स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो पहला है, बट आई मस्ट टेल यू जॉन, ऑल द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, फ्रॉम द गार्डन, पहला गार्डन, and the naked sumo wrestler to the yellow roses and the path of diamonds, which I am soon getting to, serve as powerful reminders of the wisdom I learned in Sivana. The garden keeps me focused on inspiring thoughts. Mind, our garden is a mind, okay? Then the lighthouse reminds me that the purpose of life is a life of purpose. अभी नहीं मिला है तो ढूंढना शुरू कर दो। इट्स ऑलमोस्ट हाई टाइम। पर्पस क्या है जिंदगी का? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, दुनियादारी की, ठीक है, सब मजे किए, दुख झेले, अभी क्या बस चले जाना? क्या यही करने आए थे कि कुछ और पर्पस है लाइफ का? ठीक है, तो ये यू हैव टू डिस्कवर। द सुमो रेसलर कीप्स मी सेंटर्ड ऑन कंटिन्यूअस सेल्फ डिस्कवरी। सुमो रेसलर जो 900 पाउंड है, 9 फुट टॉल है, बता रहा है खुद को डिस्कवर करो, अबाउट योर ओन सेल्फ, हाउ यू आर बिहेविंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके? जैसे कि माइंड की स्क्रीन में आप जैसे मूवी देखते हो, या बेस्ट पार्ट जब हम दूसरों को देखते हो, हम देख पाते हैं कि उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो नाक फुलाती है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, है ना? हम फटाक से दिखते हैं, लेकिन हमें खुद का नहीं दिखता। फ्रेंड्स, यू नो द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, सबसे नजदीक हमारी आंखों के क्या है बताइए, एकदम आंखों के पास, बताइए, हमारे आई लैशेस। ये जो इतने नजदीक होने के बावजूद हम हमारी आंखों के आईलैशेस खुद नहीं देख पाते। करेक्ट, पर हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी से देख पाते हैं, दूसरों की बाकी सारी चीजें दिख जाती हैं हमें। तो ये बताने का पॉइंट ये है कि हम खुद के नहीं देख पाते। लेकिन अगर आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, सेल्फ मास्टरी करनी है, तो आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। सेल्फ डिस्कवरी ये है कि आप खुद को भी लाइफ के ड्रामा में एज अ पार्टिसिपेंट देखो। करेक्ट। और आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ।
जब मैंने ये शुरू करा था, मतलब मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी, आई थिंक इट वाज इन 2007 ऑनवर्ड्स, ऑल दिस ट्रेनिंग्स एंड ऑल। तो उसमें मैंने क्या करना शुरू किया पता है? मैं अपनी वॉइस ने, जब मोबाइल फोन्स न्यू आए थे, कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती थी, कभी कभी अपने आप से कॉल रिकॉर्ड हो जाता था ऐसे अपने, इसमें बिना कुछ सेटिंग होती थी, इतना समझ भी नहीं आता था, बट कॉल्स रिकॉर्ड हो जाते थे, इफ यू रिमेम्बर। आई वुड लिसन टू माई ओन वॉइस। मैं वो खुद पर मेरी रिकॉर्डिंग सुनती थी, तो मुझे लगता था आई वुड एनालाइज माई सेल्फ, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ दिस, बट ओ आई थिंक माई वॉइस वॉज लिटिल रूड, आई वॉज वेरी कमांडिंग। देन थोड़ी बेकार नेगेटिव बातें काफी चल रही थी। आई वॉज रिकॉर्डिंग सुनते मैं एनालाइज कर रही थी खुद को कि मेरी आवाज दूसरों को कैसे सुनाई देती है। मैं दूसरा पर्सन बन के खुद को सुनती थी। तो ऐसे ही अगर आप ये मास्टरी सीख जाते हो कि जिंदगी के स्टेज में एज अ मदर मैं कैसी दिखती हूँ, एज अ वाइफ मैं कैसी बात करूँ, मुझे लगता है मैं हूं ना। तो मैं चिढ़ गई हूँ यार, ये सुन नहीं रहे हैं, मैं इनको बोल रही हूँ अरे 1 महीना हो गया, ये टैप यहाँ पड़ा है, नल आपने लाके रखा है, प्लम्बर आप बुला नहीं रहे हो, मैं बुला रही हूँ तो आप बोल रहे हो नहीं मेरा बंदा आएगा। आई मीन क्या है? अब मेरे को चिढ़ दिखाई दे रही है, अपनी इरिटेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट एज अ हस्बैंड या एज अ आउटसाइडर, अगर एक फैमिली है, उसमें पति है और एक पत्नी है जिसका नाम प्रगति है, और वो चिड़चिड़ कर रही है, getting my point? If I can see myself, what I am doing, how just is it likable? अगर आप वो कैरेक्टर देखते हो तो forget justify, is it likable? Are you lovable? Do people want to be with you? क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे कि आप एक काम नहीं कर पा रहे? फॉर एग्जाम्पल दीपा को कुछ किसी को देना है, और रोज भूल जा रही है, कर रही है, अरे वो कर नहीं पा रही, और मैं रोज उसको बोली क्या रे दीपा तू लाती नहीं क्या रे, और वो बोली अरे यार हुआ, शी इज गिविंग मी कि यार मैं करूंगी, रुक, अरे वापस। कितना आप जस्ट बी इन टू अदर पर्सन शूज एंड सी, और अदर देन दैट एक बिगर पिक्चर, उससे बाहर निकल के हम देखें कि मैं कैसी हूँ। अब दिस वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। Let me tell you, my children have also done trainings, okay? They are also almost life coach, जो ट्रेनिंग माँ मैंने जहां तक की है मेरे बच्चों ने की है, स्पेशली मेरी बेटी ने, करेक्ट, एंड शी इज वेरी वेरी स्मार्ट। बच्चे हमसे और एक स्टेप अपग्रेडेड होते हैं ना, हमें थोड़ा सीखने में समय लगता है, वो फट से पकड़ लेते हैं। अब मुझे ऐसे था कि भैया मैं तो बड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरा घर प्रॉपर है, मैं लाइफ में डिसिप्लिन्ड हूँ, आई डू माई वर्क प्रॉपरली, आई एम परफेक्शनिस्ट, ओके, एंड आई एम वेरी गुड, आई मीन मैं सबका खाने का ध्यान रखती हूँ सब कुछ। बट वंस वाइल टॉकिंग, मेरे नीस नेव्यू आए थे, तब मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप बहुत इंटिमिडेटिंग हो, मतलब कि मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मैंने बोला है, ये लड़की इतनी बकबक करती है मेरे साथ, इतनी धमाल मस्ती करती है लड़की, और बोलती हाँ मम्मा। आई वॉज सो शॉक्ड। शी सेड मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मैंने कहा अच्छा, कब डांटा मैंने? नहीं आप बहुत डांटती रहती हो। मैंने कहा है, मैंने कब डांटा? बोले, तो मेरे नीस ने भी थे, हाँ मासी, अपने को पता नहीं चलता, मम्मी भी मेरी ऐसी ही बोलती है कि मैं नहीं डांटती, लेकिन मम्मी बहुत डांटती है, मतलब मेरी एल्डर सिस्टर। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ वो तो डांटती है, मैं सुनती हूँ। बोलते वैसे ही मासी आप भी डांटते हो, भी पता नहीं चलता। बेबू को ऐसे, मेरी बेटी का नाम, उसको प्यार से बेबू बोलता है, तो बेबू को ऐसा लग रहा है कि आप डांट रहे हो। मैंने कहा है, मतलब इट वॉज सच ए बिग शॉक है, मैं कब डांटती हूँ? बट सी, इट कुड बी बीइंग अ टीचर, इट हैपेंस इन मी, और इट इज नेचुरल फॉर मी, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। बट मे बी माई टोन इज लाइक दैट, राइट, कि बच्चे को लग रहा है कि मैं डांट रही हूँ। पॉइंट आई एम मेकिंग, इसमें आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि सेल्फ मास्टरी की या सेल्फ डिस्कवरी की, जो सुमो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम खुद के लिए कैसे दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो है ही हम कैसे हैं। बट आप जब दूसरे की नजर से देखते हो खुद को, या आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगी है और आप कैमरा में से खुद को देखते हो, है ना, कई बार, तो वैसे अगर आप देखो सीसीटीवी कैमरा में खुद को, हाउ एम आई बिहेविंग, कि पति बाहर से आए और मैंने आते ही ये क्वेश्चन पूछा, करेक्ट, या बेटे को मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप ऐसे सोचो कि एक सीसीटीवी कैमरा में आप खुद को देख रहे हो, तो आप कैसे दिख रहे हो, है ना? ये वाला आपको सेल्फ डिस्कवरी में बहुत हेल्प करेगा। प्लस जो हमारे एक्शन फॉर द वीक है, रात को सोने से पहले अगर आप रिफ्लेक्शन करते हो कि आपने आज क्या अच्छा काम हुआ, गुड गुड गुड,
और कुछ गलत हो गया यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ठीक है। या मुझे किसी को नो ऑफर कोई आया और मैंने उसको चाय भी नहीं, मतलब बोला चाय पी, उसने ना बोला, मैंने नहीं, थोड़ा मैं उसको शायद ठंडा पूछ लेती, ठीक है। या मैंने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपको ऐसे लगता है तो आपको उसको ऐसे मिटाना है, और क्या करना चाहिए था वो आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये था सेल्फ डिस्कवरी की बात। उसके आगे बढ़ते हैं। he says that मतलब that was about the sumo wrestler क्या बताता है, सेल्फ डिस्कवरी। while the pink wire cable links me to the wonders of will power, ये बड़ा सुपर था, पावर ऑफ डिसिप्लिन ना, विल पावर का। और ये करके देखिए आप, अगर आपने विल पावर है, जैसे मैं बता रही हूँ, हमने 90 डेज चैलेंज किया था ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन का। इतना विल पावर था ना, शेयर विल पावर देयर वर, मतलब स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से कुछ 25-30 जन आए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे घटते गए 20-15। उसमें से जो मेरे ख्याल से लास्ट के जो 5 या 7 लोग थे, उसमें एक हस्बैंड वाइफ कपल था, एक दिन मिस नहीं करा उन्होंने। शेयर विल पावर, शेयर विल पावर, करेक्ट। एक बार आपने, इसे ही मैं बात करती वेन डायर की पावर ऑफ इंटेंशन, बुक मैंने पढ़ी थी, सुपर डुपर बुक है। मतलब सिर्फ ये अपना विल पावर से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक अलग ही शक्ति है, सिद्धियां बोलते हैं प्राप्त करना, वैसे एक है विल पावर। तो इसमें एक हमारा एक्शन फॉर द वीक था मौन रखना, विल पावर। बहुत बोलने की इच्छा होती है, पर नहीं, मेरा 1 घंटे का उपवास है, खत्म होगा फिर ही बोलूंगी। 1 घंटा 2 घंटा डिपेंड्स, ओके, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। तो पिंक केबल बता रहा था उसका जो है, वंडर्स ऑफ विल पावर। A day doesn't pass without me thinking about the fable and considering the principles Yogi Raman taught me. And exactly what does the shining gold stopwatch represent? It is a symbol of our most important commodity, time. And what about positive thinking and goal setting and self mastery? They all mean nothing without time. About 6 months after I made the delightful forest retreat in Sivana, my temporary home, one of the sages came to my herd of roses while I was studying. Her name was Divya. She was a stunningly beautiful woman with jet black hair that fell below, just below her waist, and in a very gentle and sweet voice, she informed me that she was the youngest of all the sages living in the secret mountain abode. She also said that she had come to me on the instructions of Yogi Raman, who had told her that I was the best student he had ever had. Maybe it is all the pain you suffered in your former life that has allowed you to embrace our wisdom with such an open heart, she stated. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव सफर्ड इन योर फॉर्मर लाइफ। तो हम ना, एक बात हम लोग प्राणिक हीलिंग में मास्टर हमें बताते हैं कि कई इनकारनेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, कई लाइफ टाइम्स होते हैं, जन्मों जन्मों से हम आते हैं। और कभी कभी आप देखते हो कि कोई उम्र में बड़ा होगा, बॉडी, फिजिकल बॉडी, पर वो ना बड़ा बचकाना सा होगा, छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ रहता है कि अरे उसने मुझे ऐसे बोला, मेरे से ये नहीं रहा जाता, या मेरे को यही साड़ी चाहिए, या मुझे यही, अटके रहते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग में। और कभी कभी आप ऐसे देखो, कोई छोटा सा यंग है, 20, 22, 25, वो बड़ा ही मैच्योर्ड है, बहुत सब्र है, बहुत पेशेंस है। तो ये एक ही जन्म में नहीं आता, ये कई इनकारनेशन से कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपने बहुत कुछ सफरिंग और पेन है लिया है, और अगर आपने उस पेन से सीखा है, तो ये फोकट नहीं जाता, मुफ्त में बेकार नहीं जाता, ये आप कैरी करते हो आगे, एक्सपीरियंसेस आप कैरी करते हो दोस्तों। आप अपने पोजेशंस देखिए, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, विथ योर आईज क्लोज, लेट्स थिंक अबाउट अवर possessions, हाँ, चलिए। So you can think about if you have a property, if you have a house, very good. You have money, okay, you have goals. अपने एसेट्स गिन लीजिए जरा, कितने एसेट्स हैं आपके पास, आपके ज्वेलरी, शेयर सर्टिफिकेट्स, एफडीज, और कोई प्रॉपर्टी, पैसे, महंगी साड़ियाँ, जूते, और क्या हो सकता है, वॉचेस, परफ्यूम्स, जो भी आपके हैं, आपके बच्चे, वाओ ये भी हैं, पति, फैमिली, माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त, कौन से आपके एसेट्स हैं, चलिए 1 2 3, देखिए सारे एसेट्स, देखिए कितनी सारी चीजें हमारे पास।
ठीक है। अब धीरे से आंखें खोलिए। आप बोलिए, इन सारी चीजें जो आपको फटाफट याद आई, इनमें से कौन सी चीजें आप अपने साथ लेके जाने वाली? बेहद कीमती भी हो सकती हैं, कीमती से कीमती, बेहद प्यारी से प्यारी, कौन सी चीजें आपके साथ आगे जाएंगी? कुछ भी नहीं। भी नहीं। कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या जाएगा पता है? कुछ जाता है। इमोशनल बॉडी में कुछ जाता है। इम्प्रिंट जाते हैं। या एक्सपीरियंसेस जाते हैं, मेमोरीज जाती हैं, यादें जाती हैं। यादें हमारे सेल की भी मेमोरी होती है। छोटे छोटे सेल्स, कोशिकाएं होती है ना शरीर में, ऑर्गेन्स होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेन की भी मेमोरी होती है। लिवर है ना, लिवर की भी मेमोरी होती है। लंग्स की, हार्ट की, हर एक चीज की मेमोरी होती है। अगर कभी हम बहुत ज्यादा डर गए ना, बचपन में एक डर बैठ गया, बोलते हैं ना मन में डर बैठ गया, वो सेल्स में रह जाता है। तो शरीर तो चलो जल गया, दफना दिया, भस्म हो गया, लेकिन उसके साथ जब आत्मा जाती है ना, तो वो जो सेल्स की मेमोरीज उसके साथ जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो आप देखिए आपको क्या जमा करना है। अब ठीक है, आपने ये सब संसार में रहे हैं तो जमा किया, गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर जीने के लिए हमें ये सब साधन सुविधाएं चाहिए ना, बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत मजा आती है, होनी भी चाहिए। सभी के पास होनी चाहिए, मुझे तो लगता है। सुख सुविधा और साधन से साधन होने चाहिए। अब बात आती है अपने साथ लेके जाने की, तो थोड़ी उसकी भी तैयारी करनी चाहिए ना। तो क्या क्या चीजें लेके जाएंगे? प्यार, दुआएं, किसी की अच्छी यादें, गुड एक्सपीरियंसेस, सच एक्सपीरियंसेस। जब हम ट्विन हार्ट्स करते हैं मेडिटेशन, उसमें मास्टर कहते हैं थिंक ऑफ अ हैप्पी मोमेंट। ठीक है, तो हमें वो हैप्पी मोमेंट सोचने में भी याद करना पड़ता है, कौन सी हैप्पी मोमेंट थी। ये यादें आपके साथ जाएंगी। किसी को हेल्प कर दिया आपने, वो गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। ये एक्चुअली बहुत डीप में है, यही चीजें आपके साथ जाएंगी धीरे धीरे। यही गुड कर्मास का बैगेज होता है जो आप लेकर जाओगे। तो जब हम इनकारनेशन में आते हैं और हम पेन सफर करते हैं, आप जो लेसन सीखते हो, जब आपका नेक्स्ट इनकारनेशन होगा, आप वाइज, समझदार हो क्या होगे, क्योंकि आपने पहले ही वो दुख दर्द पिछले जन्म में सहा हुआ है। तो वो गलती तो आप करोगे नहीं। आपने देखिए बड़े सयाने लोग भी होते हैं और कुछ मूर्ख भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं तकलीफें सहन करते हैं, बोलते बाबा कितनी मुश्किलें सहन कर रही है भगवान, इतनी तो बड़े स्ट्रगल देखे हैं। पर आगे जाके देखते हैं उसकी जिंदगी अभी बड़े मजे में है। बोलते हैं ना, अरे आज बड़े मजे कर रही है, राज कर रही है, पर ये बेचारी ने भी बड़े मुश्किलें देखी। मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट। अब वो राज सिर्फ इसी जन्म में नहीं, इसने और अच्छे कर्म किए तो और अच्छे भोगेगी वो। अंडरस्टैंड? सो पेन नेवर गोज इन वेन। वाह, पेन वेस्ट नहीं जाता, बशर्ते आप उसमें से कुछ सीख लें। ठीक है। सो दैट इज व्हाट शी सेज। वाओ, आई लाइक्ड इट, आई होप इट हेल्प्स यू। आई मीन इट इज ब्यूटीफुल, आई लाइक्ड इट रियली। तो पहले तो क्या लेके जाना है, उसकी एक लिस्ट बनाए, एक्शन फॉर द वीक। तो कौन सी चीजें, जैसे हमने अभी किया, क्या हमारे पास है, वो तो फटाफट लिस्ट बना ली मटेरियल चीजों की। तो अब वो चीजों की लिस्ट बनाएंगे कि जो हम लेके जाना चाहते हैं। जैसे हम बहुत सारा विजडम लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, इस सबसे आप नेक्स्ट जन्म में इंकारनेशन करते हो, चलिए ये लिखते हैं। हम कहाँ इंकारनेशन करना चाहेंगे? वाह, कहाँ पर, किस घर में, कैसे घर में, क्या चाहोगे आप? कैसी बॉडी चाहोगे? कैसे इमोशंस, क्या चाहोगे? और क्या लेके जाओगे? उसके लिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? अगर आप बहुत एक हेल्दी बॉडी चाहते हो, एकदम सुपर डुपर हेल्दी, मे बी मैन और विमेन दैट इज डिफरेंट, बट फिजिकल बॉडी, तो उसके लिए आपको क्या लेसन लेके जाने हैं? तो अगर आपको विल पावर है, तो आप अचरा कचरा मुंह में नहीं डालोगे ना, कि नहीं उपवास है आदमी खाएंगे। ये आपके साथ जाएगा एक्सपीरियंस। विल पावर स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट जन्म में भी विल पावर आपका स्ट्रांग होगा। समझ गए? तो आप देखिए आप क्या लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन फॉर द वीक। आगे बढ़ते हैं। So this young lady has come, Divya, young monk, and she says that she's youngest in the community, and I have been asked to bring you a gift. It is from all of us, and we offer it as a token of our respect for you. One who has traveled so far to learn our ways. At no point have you judged us or ridiculed our traditions. So, though you have now decided to leave us within a few weeks, we consider you as one of our own.
No outsider has ever received what I am about to give you. What was the gift? I asked impatiently. Divya pulled out an object from her homespun cotton bag and handed it to me. Wrapped in a fragrant cover of some type of paper was something I never thought I would see there in a million years. It was a miniature hourglass which had been made from blown glass and a small piece of sandalwood. Seeing my expression, Divya quickly told me that each of the sages had received one of these instruments as children. Though we have no possessions and live pure, simple lives, we respect time and note its passing. ये important है, note its passing. कितना जल्दी समय गुजर जाता है। 2025 ऐसे लग रहा है अभी अभी हमने शुरू किया था। अब महीने आखिरी 1.5 महीना रह गया है साल पूरा खत्म होने में। So you should note how quickly the time flies. These little hourglasses serve as daily reminders of our mortality and the importance of living full, productive days while advancing our purposes. इसमें एक important line ये थी कि अगर हर बंदा, दोस्तों, अगर हर बंदा, हर इंसान दिन में अगर एक बार भी स्मरण करे, ठीक है, कि उसकी रिटर्न टिकट है, मौत होने वाली है, सीरियसली, नॉट एट इंटेलेक्चुअल लेवल कि हाँ भाई खाली आता है, खाली हाथ जाना है। अब इतना बोल दिया फिर भी बार्गेनिंग करेंगे, है भैया पालक कैसे दिया, 30 रुपए, ना ना भैया मैं तो 20 ही दूंगी ना, अरे क्यों भाई, दे दो ना बड़े गरीब को, 25 दे दो, है ना, नहीं नहीं भैया 15 ही दो, 10। अभी आप बोल रहे हो खाली हाथ जाना है, खाली, और आप वो बेचारे जो धूप में खड़ा है सब्जी लेकर, 5-10 रुपए में आपका क्या जाएगा, बट आप जी तोड़ के उससे आर्ग्यूमेंट कर लेते हो। ठीक है। पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज, नोट द पासिंग ऑफ द टाइम, रिस्पेक्ट इट एंड रिमेम्बर द मोर्टैलिटी वंस। जब आप दिन में एक बार भी, जब मेडिटेशन में बैठते हैं या शांत बैठते हो, एक बार खुद को याद दिलाओ यार, इट इज वेरी टेम्पररी लाइफ, वेरी टेम्पररी एंड वेरी शॉर्ट। इवन द लॉन्गेस्ट लाइफ, इसी में एक लाइन है, यही अपने बुक में हमने पढ़ी थी, इवन द लॉन्गेस्ट लाइफ इज वेरी शॉर्ट। कितना, 90 साल, 92, चलो 95 पकड़ लो, चलो 100 भी पकड़ लो, तो भी क्या कर लिया आपने 100 ईयर्स में? 50 साल तो ऐवे ही चले जाते हैं बच्चों को सेटल करते करते, दादा दादी बनते, चलो 65 50 60 साल, बस रिटायर हो गए, फिर तो शरीर के पीछे, हड्डियां, घुटने दुख रहे हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर, हो गया खत्म जिंदगी। बैठेंगे अपन, दिन में अगर एक बार भी हमने खुद को कोई ऐसा रिमाइंडर रखो कि भाई रिटर्न टिकट है और एक और दिन कम हो गया आज, तो आप अर्जेंसी से लाइफ जियोगे। कंटाला आ रहा है, सुस्ती आ रही है, चल ना कल करूंगी, क्या है ना भैया, ये वापस नहीं आने वाला स्टेशन, गया गया, गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, आगे ही। एवरी मिनट इज प्रेशियस, जैसे ही आपको इसका ध्यान आएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप अभी एक किसी को बोले अभी इसको सुनाती हूँ बराबर, रुक जा, आने दे मेरी बाई को, आने दे, आज देखो कैसे छोड़ के गई है घर। हाँ, मेरे घर में गेस्ट आ गया, मैं उससे बातों में लगी थी तो किचन में गई और 40 मिनट में बाहर निकल गई, उसका 1.5 घंटे का काम है, और ऐसे ऐसे करे, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। आने दे, कल उसको ठीक करती हूँ, बराबर करूंगी। अब बड़ा दिमाग में रखा है, लेकिन वो आई, सुबह में मेडिटेशन किया, मुझे पता है, राइट। तो मैं कम से कम ऐसी कड़वी बातें नहीं बोलूंगी जो उसको दुख हो। ठीक है, आई विल से टू द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, गेटिंग माय पॉइंट। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा इमोशनली यू बोल जाते हैं, यू नीड टू कंट्रोल। आई डू अ रिहर्सल इन माय माइंड व्हेन आई हैव टू से समथिंग। ठीक है, तो जब मुझे किसी को, फॉर एग्जाम्पल को टीचर को भी बोलना होता है कि भैया चलिए आप यहाँ आ जाइए, ये कीजिए, तो मैं बिल्कुल देखती हूँ सीसीटीवी कैमरा में कि मेरा टोन ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है। कभी कभी एक्सप्रेशन में अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को सिर्फ ऐसे कुछ बोल रही हूँ, लेकिन वो बंदा बोलेगा इसने मुझे टॉन्ट मारा। अब मैंने कब टॉन्ट मारा? मैंने तो उसको प्लेनली ये बात बोली, ठीक है, पर वो बोल रही कि ये मुझे टॉन्ट मार रही है। पॉइंट ये बोल रही हूँ कि खुद के एक्सप्रेशन, खुद का टोन पर ध्यान दें, और खुद को देखने के लिए यू हैव टू, यू नो
अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक दिन दिन में एक बार कुछ ऐसा रिमाइंडर रखें कि हमें जाना है। तो जो आप चिल्लाने वाले हो, किसी पे कड़वा बोलने वाले हो, अपना गुस्सा वेंट आउट करने वाले हो ना, उसको आप पोस्टपोन कर दोगे। ठीक है, ट्राई रिसेंटली, ट्राई करके देखिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये याद नहीं रहता, जबकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, मॉर्टैलिटी। सभी को जाना है। अगर आप ऐसे देखो अभी, जैसे हम इतनी निंदा करते हैं या कंप्लेन्स करते हैं, यार मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे यार, तो कितना आजकल के बच्चे। अगर आप सोचो कि ये बच्चों के साथ मेरे पास कितने साल हैं, और कितने बरस और हैं, अगर आज मैं 50 की तो 30 साल और। 30 में से कितने साल मैं प्रॉपरली बोल पाऊंगी, याददाश्त सही होगी। पता है कितने लोग को डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स, याद नहीं रहता उन्हें। कितने साल हैं मेरे पास बच्चों के पास और बिताने के लिए। उनके अपने संसार हो जाएंगे। ठीक है? तो जितने बरस वो मेरे साथ है, तो कैसे मैं बिहेव करूं उनसे। हाउ टाइम इज पासिंग। वंस यू कीप वन थिंग रिमाइंडर विच टेल्स यू हाउ मच लाइफ, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विथ यू। ओके। तो उसे क्या मिला, एक आवर ग्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर ग्लास। जूने जमाने में जो टाइम देखने के लिए कांच का बना होता है, सैंड होती है जो नीचे जाती रहती है, राइट। So, seeing my expression, Divya quickly told me that each of the sages had received this as instruments as they were children. Although we have no possessions and live, sorry, ये हमने कर दिया है. These monks up in the highest reaches of Himalayan mountains kept time. Each and every one of them understood the importance of time. They each had developed what I called a time consciousness. You see, I learned that time slips through our hands like grains of sand, never to return. Those who use time wisely from an early age are rewarded with rich, productive, and satisfying lives. Those who have never been exposed to the principle that time mastery is life mastery. Wow. Will never realize their enormous human potential. टाइम इज अ ग्रेट लेवलर, लेवल पे ला देता है बराबर सबको। वेदर वी आर privileged or disadvantaged, whether we live in Texas or Tokyo, we all have been allotted days with only 24 hours. What separates those who build exceptional lives from the all rans is the way we use this time. From the also rans is the way they use this time. I once heard my father say that it was the busiest people who have time to spare. What do you make of that? मैं वापस पढ़ती हूँ. My father said that it was the busiest people who have time to spare. I agree. Busy, productive people are highly efficient with their time. They must be in order to survive. Being an excellent time manager doesn't mean that you must become a workaholic. On the contrary, time mastery allows you more time to do things you love to do, the things you are truly meaningful to, things that are truly meaningful to you. Time mastery leads to life mastery. Guard time well. Guard करो उसको. रिमेम्बर, जैसे गोल्ड चेन पहनते हैं, या गोल्ड ज्यादा पहना है आपने, और कोई सुनसान या कहीं से आप जा रहे हो, तो बार बार आपका ध्यान रहता है, ठीक है। आप उसको गार्ड करते हो, संभाल के चलते हो, राइट। वैसे आपको समय को गार्ड करना। सुबह हुई तो 25 24 घंटे हैं मेरे पास आज के। रिमेंबर, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल जुलियन ऑफर्ड। लेट्स से इट्स मंडे मॉर्निंग and your schedule is overflowing with appointments, meetings, and court appearances. Rather than getting up at your usual 6:30 a.m., gulping down a cup of java, speeding off to work, and then spending a stressful day of catch up, let's say you take 15 minutes the night before to plan your day. Or to be even more effective, let's say you took 1 hour on your quiet Sunday morning to organize your entire week. In your daily planner, you write out when you would meet with your client, when you would do legal research, and when you would return phone calls. Most importantly, your personal and
your personal, social, and spiritual development of goals for weeks also for the week also went into your agenda book. This simple act is the secret to the balance of life. मुझे लगता है हम लेडीज लोग काफी ये बैलेंस सीखते हैं, क्योंकि जब हम स्पेशली कुकिंग के लिए, जो लोग कुकिंग करते हैं उनका बड़ा प्लानिंग होता है कि संडे है तो ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, सैटरडेज को हम ये बनाएंगे। अगर हम रात का खाना मॉर्निंग में ही सोच लेते हैं ब्रेकफास्ट ये बनेगा, लंच ये बनेगा, डिनर में ये प्लान कर लेते हैं, राइट? So it is important that you spend the previous 1 hour and plan entire week. पूरा वीक आप प्लान कर लें, यहाँ तक कि किसको कॉल करना है, किसके साथ बात करनी है आपको, ठीक है, क्या क्या काम करने हैं, वो सारे आप पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट गोल्स आप लिख लेंगे वीक के, 1 वीक के। पहले हमने पूरे लाइफ के लिखे थे ना, हमारे गोल्स क्या है फिनेंशियल, अभी 1 वीक में आप क्या अटेंड करना चाहते हो, तो यू कैन राइट इट एवरी संडे इवनिंग, करेक्ट, और संडे मॉर्निंग। So, by anchoring all those most vital aspects of your life into your daily schedule, you ensure that your week and your life retain a sense of meaning and peace. बहुत शांति मिलेगी आपको. Surely you are not suggesting that I take a break in the middle of my busy work day to walk in the park or meditate? I sure am. Why are you so rigidly bound to convention? Why do you feel that you have to do things the same way as everyone else? Run your own race. आपकी रेस है, आपको दूसरों को देख के नहीं चलना है। लोग कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी है, आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप डिसाइड करोगे। जो एक हर्ड मेंटेलिटी होती है ना, सभी ये करते हैं मैं भी वही करूं, से थोड़ा सा हटके ये याद रखें, रन योर ओन रेस। आपको, आपकी जिंदगी है और आपकी जिंदगी का ये रेस है। रेस अगेंस्ट क्या? रेस अगेंस्ट टाइम। रेस अगेंस्ट टाइम है बच्चा लोग, रेस अगेंस्ट बाजू वाला नहीं है। या रेस अगेंस्ट मेरी बड़ी बहन ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, मेरी छोटी बहन ने प्रोग्रेस कर ली, मैंने क्या किया, नो। रेस अगेंस्ट माई टाइम। इफ आई एम 50 टुडे, आई हैव 8 more years of job, और आई वांट टू रिटायर इन नेक्स्ट 33 years, या नेक्स्ट 4 years में मैं क्या करना चाहती हूँ, इट इज माई रेस, माई हेल्थ गोल्स, माई मनी गोल्स, माई ब्यूटी गोल्स। Okay, run your own race. Why not start working an hour earlier so that you will have a luxury of taking a serene mid-morning walk in that beautiful park across your office? Or why not put in a few extra hours at the beginning of your week so that you can cut out early on Friday to take your kids at the zoo? Or why not start working at home 2 days a week so that you can see more of your family? All I'm saying is plan your week and manage your time creatively. ये बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोग आप देखते हो टाइम नहीं है ना, कितने लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। मैंने कितने लोगों ने कहा होगा, इनफैक्ट मैं बोलूंगी, मुझे जो मोस्ट लोगों ने कहा था कि प्रगति प्लीज आप बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट कर लीजिए ना, हमें लगता है हमें और पढ़ना चाहिए यार, सच में सच में। इतने बड़े बड़े चैट्स लिखे हैं उन्होंने, मुझे बातें करी हैं। अब बाद में वही कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है यार, बिल्कुल टाइम नहीं। एंड आई अग्री, क्योंकि वो रात को 10-10, साढ़े 10-10 बज जाते हैं उनको, फिर सुबह में वापस दौड़ो। आई मीन सरप्राइज, आई एक्नॉलेज देम, द वे दे वर्क, घर में बाहर, इट्स लाइक अ मशीन। बट व्हाट आई वांट टू से इज, everybody has 24 hours, even our prime minister, correct? What is the difference between his 24 hours and my 24 hours? And everything is possible. Everything is possible. आज मेरी एक फ्रेंड आई थी, okay, and actually she had come for healing sessions, okay, and I'm healing her, and there was no, actually she just comes to मिलने भी आई और healing के लिए भी आई थी। तो कहती है मैं सोचती हूँ प्रगति तू इतना कैसे कर लेती है, मतलब तेरा फुल टाइम जॉब, एंड शी सॉ माय हाउस आल्सो, ऑल वेल मेंटेन, स्पिक एंड स्पैन एवरीथिंग, और मैंने बिना खाए भी उसको जाने नहीं दिया। तू खा के जा, सब रेडी है, क्या खाएगी बता, चल चाय पीते हैं साथ में शाम को। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली वी सेट एंड एवरीथिंग, एंड शी सी, तो मैं सोचती तू कैसे कर लेती है, मतलब तू ऑनलाइन सेशन भी लेती है, तू इतनी हीलिंग भी करती है, फिर तू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तू रिट्रीट्स भी जाती है, फिर तू घूमती भी है, पता चला तू यहाँ घूम कर आई, तू वहां घूम कर आई।
तो मतलब कैसे कर पाती है तू ये सब, क्या करती है, हाउ डू यू गेट टाइम? आई सेड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड, यू गेट टाइम, यू जस्ट हैव टू हैव इंटेंशन, यू गेट टाइम। एक्सरसाइज भी कर लोगे, मेडिटेशन भी कर लोगे। मैं खुद क्लासेस लेती भी हूँ, क्लासेस करती भी हूँ। यू अंडरस्टैंड, आई हैव माय बुक स्टडी सेशंस एंड आई स्टडी अदर बुक्स with other group. We sit together and we study. So time you have to manage creatively. करेक्ट, टाइम ढूंढना पड़ेगा नहीं, टाइम सभी के पास होता है। आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो, लीकेज कहाँ है वो आप देखो। कि जहां आपको बात 2 मिनट की करनी है, आपने जब फोन उठाया ना दोस्तों, आजकल का टाइम चोर क्या मन में, फोन। जैसे ही आपने फोन उठाया, देखो कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आपने कुछ काम करने के लिए फोन उठाया, लेकिन किसी का मैसेज आया, आपने वो देखा, हाँ अच्छा ऐसे क्या, ओ धर्मेंद्र जी की अफवाह ही है, देखो तो क्या है गूगल पे, ओ अच्छा ठीक। अरे आपने फोन क्यों उठाया था, आप तो भूल ही गए। वो घूमते रहे लूप में, और फोन रख दिया, और फिर बाद में याद है, अरे उसको तो मैंने फोन करा नहीं। तो फोन तो उठाया था, लेकिन कहीं और गोल गोल घूम के फोन रख दिया आपने। ये हो गया आजकल का भूल भुलैया। फोकस्ड होना। फोन पे अगर किसी से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, तो नंबर डायल करने से पहले, उसका नंबर कॉन्टेक्ट बुक से निकालने से पहले, एक्शन फॉर द वीक है नेक्स्ट, मंडे टू यू हैव टू डू दिस व्हाट। जब भी आप फोन उठाएं, किससे बात करें, अभी जैसे मम्मी का हालचाल पूछने फोन कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं देख लूंगी मुझे कितने मिनट बात करनी है। ठीक है, क्या क्या पूछना है मुझे मम्मी से पहले, इंपॉर्टेंट, उनके हेल्थ के बारे में, वो सोए कि नहीं, मुझे उनको सुनना है 5 मिनट, बोलना नहीं है पहले। ठीक है, तो पहले उनका पूरा सुन लूंगी, फिर मम्मी मुझसे पूछेगी भाई तुमने क्या बनाया खाना आज तुमने, फिर मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल के, अच्छा मम्मी रखो, हाँ ठीक। नॉट ओनली माई मदर, इट्स विद फ्रेंड्स, विद एनीबडी, यू पिक द फोन अप, कैजुअल है, आप देखो आपका इंटेंशन क्या है, आपने क्यों फोन उठाया है, क्या बात करनी है आपको, पति से बात करनी है, क्या बोलना है, भैया ये 4 चीजें ले आना, आप ये नहीं लाए, आप ये करना, ये लाना, ये भूलना मत, इनका फोन आया था, ये मैसेज है, इंस्टेंट। तो ये फोन बड़ा चोर है, तो आप देख लो कितना समय आप फोन के साथ बिता रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये लीकेजेस बंद कर दोगे, यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। हैव द डिसिप्लिन टू फोकस ऑन योर टाइम अराउंड योर प्रायोरिटीज। दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी क्या है। तो अगर मैं फ्रेंड को फोन करना है एक, और दूसरा एक मुझे है कि मुझे लेट्स टेक कि मुझे कोई बेटी से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, और नेक्स्ट डे का कुछ काम है, ठीक है, 3 4 चीजें हैं। तो उसमें देखना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। ठीक है, मुझे वार्डरोब भी बनाना है, फिर मुझे से दाल भिगा के रखनी है, वार्डरोब बनाना है, फिर एक कॉल करना है। अगर 3 चीजें हैं, तो अब देखो तीनों में से प्रायोरिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी करने के लिए क्या है। ठीक है, the most meaningful things in your life should never be sacrificed to those that are the least meaningful. And remember, failing to plan is planning to fail. Very important line. Failing to plan. अगर आपने प्लान नहीं किया, मतलब आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो, फेल हो गई हो गया। प्लानिंग इतनी जरूरी है। तो जब आप दिन में भी हम करते हैं ना प्लान, कि आज का दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। जब हम मैजिक सेशंस कर रहे थे, तो हम मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना सीखे हैं, राइट, कि दिन भर में क्या करना। बाय राइटिंग डाउन नॉट ओनली योर अपॉइंटमेंट्स विथ अदर्स, बट ऑल्सो दोज ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स विथ योर सेल्फ, टू रीड, रिलैक्स, और राइट अ लव लेटर टू योर वाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल लिखने का ये नहीं रहा ना, आप लिख के दोगे अगर लव लेटर, तो बोलेंगे आप पागल है क्या, ये क्या कर रही है, व्हाट इज दिस, मुंह पे बोलो ना, पेपर क्या लिख के दे रहे हो। बट मैं बोलूंगी लव लेटर नहीं तो हम एक मैसेज फ्रेम करके जरूर दे सकते हैं अपने नियर एंड डियर वन, चाहे आपका बच्चा हो, बेटा हो, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल ना वो लोग फोन पे ही लगे रहते हैं, इसको भी देखो, चाहे फिर वो बिजनेस से हो, या वो कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या खाली रील देख रहे हैं। तो आज एक्शन फॉर द वीक है, एक प्यारा सा मैसेज, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटू सा प्यारा सा मैसेज, बड़ा भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो आप मैसेज टाइप करें, अगर आपका, जिसको आप भेज रहे हैं, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपकी बेटी है, बेटा है, मम्मा है, सिस्टर है, अगर सिस्टर है, भाई है, भले आप मिलते हो उससे, ऐसा नहीं नहीं मिलते, डेली मिलते हो, फिर भी कई बातें हैं जो हम बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते। आप या तो उसको टाइप करेंगे,
या तो आप वॉइस नोट बनाएंगे और अब उनको भेजेंगे, ठीक है। लव लेटर, हाँ, नॉट कंप्लेंट्स, वो तो हम करते हैं एक्चुअली जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट्स में, शिकायतों में, परेशानियों में हम नहीं बोल पाते। और उसके एकदम शॉर्टकट, आई लव यू, ये हम बोलते ही नहीं है। 10 बार पूछेंगे खाना खाया क्या, एप्पल खाया क्या, नहाया क्या, बाल में तेल लगा दूं क्या, ये कर दूं क्या, वो कर, सब पूछते हैं, सब बोलते हैं। इंडिया में यही प्रॉब्लम है। और 3 वर्ड बोलने में हमें बहुत तकलीफ होती है, आई लव यू। हम नहीं बोलते। कितने लोगों ने कई दिनों से नहीं बोला अपने नियर एंड डियर वंस को आई लव यू, अपने पेरेंट्स को, मम्मा को। आज एक मैसेज डाल देते हैं, अपना नाम नहीं डालना, जरूर भूलना नहीं, आपका होगा फिर भी। वो सोचेंगे कहीं रॉन्ग गलत फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया बीवी ने। क्या है ये। तो जस्ट सेंड अ वॉइस नोट, करेक्ट, और यू कैन टाइप अ मैसेज एंड सेंड टू योर वेरी क्लोज वंस whatever you want to say to them. Okay. So this is one thing. So it could be a love letter. You will be far more productive with your time. Never forget to forget that time spent enriching your non-work hours is never a waste. It makes you tremendously efficient during your working hours. जितना समय आप, अगर आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपके घर में आपके पति हैं, बच्चे, अगर वो काम पे जा रहे हैं, अगर आप घर का वातावरण उनके साथ एकदम प्यार में, हैप्पीली बिताते हो, प्रोडक्टिवली बिताते हो, आपको पता नहीं कि वो कितने एफिशिएंट हो जाएंगे काम पे। करेक्ट। Stop living your life in compartments and understand once and for all that all you do forms one indivisible whole. The way you act at home affects the way you will treat your family and friends. I agree, Julian. But I really don't have time to take breaks in the middle of my day. As it is, I work most evenings. ऐसे है ना, हमारे पास भी कई लोग, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता यार. My schedule is really crushing these days. As I said this, I felt my stomach tingling at the mere thought of the mountain of work I was facing. Being busy is no excuse. The real question is, what are you so busy about? One of the great rules I learned from that wise old sage is that, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ये। कौन सी हाईली नहीं, कौन सी बुक अभी ज्यादा चल पड़ी है, हैबिट्स वाली नहीं, अभी ये कौन सी है, हाँ वही हैबिट्स ही है ना, माइन्यूट हैबिट्स, क्या है वो, मिनी हैबिट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, आई सॉरी नाउ आई डोंट रिमेम्बर, वो बुक तो मैंने पढ़ी है। हैबिट्स वाली क्या है, माइन्यूट हैबिट्स है या मिनट टाइनी हैबिट्स, ऐसे कुछ तो भी, बड़ा बहुत ही प्रचलित बुक है, बहुत ही वाइडली रेड बुक है वो। ओके। तो उसमें वो मिनी मिनी हैबिट्स के बारे में बताया है, छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में, ठीक है। सो व्हाट आर यू बिजी एट, उसी में ये रूल बताया है, मतलब ये कितना पुराना बुक है जिसमें ये बताया है कि 80% ऑफ द रिजल्ट यू अचीव इन योर लाइफ comes from only 20% of the activities that occupy your time. Yogi Raman called it the ancient rule of 20. I'm not sure I follow you. Okay, let's go back to your busy Monday. From morning until night, you might spend your time doing everything from chatting on the phone with clients and drafting legal pleadings to reading your youngest child a bedtime story or playing chess with your wife. Agreed? Agreed. But out of all the hundreds of activities you give your time to, only 20% of those will yield real lasting results. Only 20% of what you will do will have an influence on the quality of your life. These are your high impact activities. For example, 10 years from now, do you really think all the time you spent gossiping at the water cooler or sitting in some smoke filled lunch room or watching television will count for anything? No, not really. Right. So I'm sure you will also agree that there are number of activities that will count for everything. You mean like time spent improving my legal knowledge, time spent enriching my relationship with my clients, and time invested in becoming a more efficient lawyer.
तो आज से 5 साल बाद क्या चीज मायने रखेगी आपके लिए? क्या आपको वो समय याद आएगा जब आप खड़े खड़े सब्जी लेने गए और कोई मिल गया रास्ते में, आप खड़े होके उससे बातें करने लगे, अच्छा फलाने का ऐसा हो गया, पता चला उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट चली गई, अच्छा हाँ तो अभी वो यहाँ नहीं रहते, वहां चले गए, ओ अच्छा। अब ये इंफॉर्मेशन आपने जमा कर ली, अब से 5 साल बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपने 15-20 मिनट आधा घंटा खड़े रह के वहां बात कर ली। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो समय कौन सा समय काम आता? ओनली 20% ऑफ योर टाइम वो इफेक्टिव होता है, वो काउंट करेगा। तो कोई भी चीज जब आप करते हो या अपसेट होते हो, तो ये एक आदत डालें कि आप सोचें कि 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या ये मेरी जिंदगी में इसका क्या महत्व है। तो आज अगर हम ये बुक रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या 5 साल बाद आपको ये कहाँ ले जाएगा? ये जो नॉलेज आपने पढ़ा, जितना भी आपको याद रहा, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ अहेड? यस, नो? rather than spending 1 hour just talking or watching some reels, कितने यूट्यूब पे हमने रेसिपीज देखे हैं, कितने आज तक या 4 साल बाद याद भी रहेंगे या हमने उसका सदुपयोग किया है बनाकर? सोचते हैं आप बढ़िया है, बनाएंगे, अच्छा है, राइट? तो ये है टाइम लीकेजेस है हमारे, जो हमें देखना है। तो जो टाइम हम बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं ना अच्छे से, वो याद रहता है, देखिए, है कि नहीं? These are just a few of the high impact activities that will allow you to design the life you deserve. Direct all your time to those activities that count. वो एक्टिविटीज से समय बिताओ जो कि आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। हाउ मेनी पेजेस आर देयर? लेट्स सी इफ वी कैन कंप्लीट। वी हैव टाइम 7 minutes, ओके लेट्स रीड। Enlightened people are priority driven. This is the secret of time mastery. सेल्फ मास्टरी हो गया, टाइम मास्टरी क्या है? प्रायोरिटी ड्रिवन। प्रायोरिटी क्या है? अब मुझे फोन करना है, वो अभी करना है, तो मुझे पहले सब्जी डालनी है बनाने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या प्रायोरिटी है वो देखना है। वाओ, योगी रमन taught you all that? I have become a student of life, John. Yogi Raman certainly was a wonderful and inspiring teacher, and I will never forget him for that. But all the lessons I have learned from my varied experiences have now come together like pieces of a big jigsaw puzzle to show me the way to a better life. Julian added, I hope you will learn from my earlier mistakes. I hope you will learn from my earlier mistakes. Some people learn from the errors others have made. They are the wise. Others feel that true learning comes only from personal experience. Such people endure needless pain and distress over the course of their life. देखिए, गलती करके सीखना, अनुभव से सीखना एक बात है, ठीक है? आप अनुभव हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, आपने सीख लिया, मुंह बंद रखना, पेशेंस रखना, अच्छी बात। लेकिन जब आप दूसरों के अनुभव से सीखते हो ना, तो आप खुद वो तकलीफ में आपको गुजरने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज खुद एक्सपीरियंस करके सीखना नहीं, कभी कभी आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वेरी रॉ एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ इट इज रिलेटेड और नॉट, लेकिन मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक फैमिली, हमारी फैमिली में, मतलब मेरी मम्मी की बुआ जी, शी हैड अ वन सन, और वो बहुत उसे लाड प्यार, बहुत पुरानी बात है, कई सालों पुरानी बात है। तो शी गेव एवरीथिंग टू हर सन। बोथ ऑफ देम इनकम टैक्स ए ग्रेड ऑफिसर थे, मेरे फूफा जी, मम्मी के फूफा जी। बहुत बड़ा घर था उनका, अमिताभ बच्चन के बंगलो के सामने उनका बंगलो था वगैरह, वेरी 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 अफ्लुएंट पीपल, वेरी रिच, मेरे मामा के साइड से। शी गेव एवरीथिंग टू हर सन, ठीक है? सब कुछ बेटे को दे दिया पहले जमाने में, सब। एंड शी हैड अ वेरी बैड ओल्ड एज। बहुत बुढ़ापा उनका बुरा गया, क्योंकि वो बेटा एकदम ध्यान ही नहीं देता था, सब पैसे पैसे में मोहताज हो गए वो लोग, सोचा भी नहीं था उन्होंने। बस ये बहुत साल पुरानी बात। उसके बाद से हमें जरूर नहीं है, हमें लेसन सीखना है ना, कि अब मुझे हमारे बुढ़ापे के लिए क्या रखना है और मुझे कितना देना है मेरे बेटे को। करेक्ट? तो ये मुझे एक्सपीरियंस करके सीखने की जरूरत नहीं, मैं दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? दैट विल सेव यू लॉट ऑफ पेन। I had been to many seminars on time management as a lawyer, yet I had never heard of the philosophy of time mastery
that Julian was not sharing with me. Time management was not just something to focus on the office or discard at closing time. It was a holistic system that could make all areas of my life more balanced and fulfilling. If I applied it correctly, I learned that by planning my days and taking the time to ensure that I was balanced in use of my time, I would not only be far more productive, I would be far more happier. So life is like a fat strip of bacon. I chimed in. You have to separate the meat from the fat in order to master your time. Very good. You are now onto it now. You are onto it now. And though my vegetarian side tells me to do otherwise, I love the analogy because it hits the nail right on the head. When you spend your time and precious mental energy on focusing on meat, you have no time waste on the fat. This is the point at which your life moves from the realm of the ordinary into an exclusive excusativeness of the extraordinary. This is when you really start to make things happen and the doors to the temple of enlightenment suddenly swing open. Julian observed. That brings me to another point. अभी दूसरी पॉइंट एक बात समझ ली सेल्फ मास्टरी टाइम मास्टरी आगे है प्रायोरिटी मतलब कौन सी चीजें प्रायोरिटी है दूसरा बताया है डोंट लेट अदर्स स्टील योर टाइम आप अपनी चेन संभालते हो कि मेरी सोने की चेन कोई ना ले जाए आप घर पे ताला लगाते हो अरे लोग आपका समय चोरी कर लेते हैं ओहो उनसे सावधान रहिए जो आपका समय चोरी करते हैं बी वेर सावधान हो जाइए ठीक है कौन है वो लोग और कैसे हमारा समय चोरी करते हैं 2 मिनट है ये पेज करके हम रुक जाते हैं यहाँ पर ओके डोंट लेट अदर्स स्टील योर टाइम बी वेरी ऑफ टाइम थीव्स समय चोर these are the people who always call on the phone just as you have to put kids to sleep and have settled into your favorite chair to read that thrilling novel you have heard so much about. आप बस किताब ली पढ़ने शायद आप अपना अध्यात्म की बुक पढ़ रहे हैं या चलो अब एक माला कर लेती हूँ जैसे आप कुछ करने गए और फोन बजा और आपने उठाया और गया आपका समय आपका छूट गया काम ठीक है जैसे मैं सोचती हूँ मैं 30-40 मिनट दोपहर में नैप लेती हूँ आराम करती हूँ आई बी श्योर दैट आई पुट माई फोन ऑन एरोप्लेन मोड एंड आई स्लीप नहीं तो वो मेरे जो 30-40 मिनट्स है ना कोई चोरी कर लेगा आराम करने का समय है मेरा आई पुट इट ऑफ मैं फोन स्विच ऑफ करके सोती हूँ ठीक है तो these are the people who have the knack of dropping by your office just as you have found a few minutes in the midst of a hectic day to catch your breath and collect your thoughts. Does this sound familiar? As usual, Julian, you are right on the money. I guess I have always been too polite to ask them to leave or keep my door shut. I confided, है ना? कभी कभी लगता है रूड लगेगा उसको अब वो आई है अब उसको मैं बोलूं बाद में बात करती हूँ किसी ने फोन किया आपने फोन उठाया और बोला अच्छा मैं देखो 10 थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ ठीक है और आप रख दो लगा वो रूड लगता है लेकिन यू कैन डू दिस यू हैव टू डू दिस क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या है पहले है ना तो मैं भी पूछ लेती हूँ "हाँ, क्या काम है अच्छा अच्छा हाँ ठीक है क्या हम बाद में बात करें इसके लिए हाँ 5 बजे बात करते हैं और मैं सिर्फ टाइम नहीं बताती कितने बजे बात करूं मैं टाइम लिमिट भी बताती हूँ 10 मिनट्स 8 मिनट्स फोन उठाते ही मैं बोलती हूँ, मैं आपके 5 मिनट लूंगी मैं आपके 3 मिनट लूंगी और मैं देखती हूँ कि मैं 3 मिनट में फोन बंद कर दूं ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो डोंट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स वेरी ब्यूटिफुल रिमेम्बर इट इज देयर फॉर योर ये लिख के रखिए आप बड़े कैपिटल में कहीं एक उसका चार्ट बनाए जैसे हम मैजिक सेशन में चार्ट बनाते हैं ना वैसे चार्ट बना के फ्रिज पे लगाए क्या लिखे डोंट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स फोन बजा मतलब उठाना जरूरी नहीं है इट इज देयर फॉर योर कन्वीनियंस ये आपकी सुविधा के लिए है नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स ये दूसरों की सुविधा के लिए नहीं कि दूसरे लोग आपको फोन करें ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इट इज देयर सॉरी आयरोनिकली पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर when they see that you are a person who values time they will realize that your time is more precious is precious and they will value it वो बेकार फोन नहीं करेंगे उन्हें पता है कि आप नहीं उठाओगे फोन उन्हें पता है कि 6 से 8 के बीच में ही आप फोन उठाओगे
समझ में आया? तो उसी समय फोन करेंगे उन्हें, ऐसे हाँ इसको तो जब भी फोन करो बात कर लो नहीं। Getting up, but people will value your time. What about procrastination? All too often, I keep putting off the things I don't like doing, and instead find myself sifting through junk mail or flipping through legal magazines. Maybe I'm just killing time. Killing time is an apt metaphor. True, it is human nature to do things that you feel good and avoid the things that feel bad. But as I said earlier, the most productive people in this world have cultivated the habit of doing the things that are less productive. People don't like doing, even though they too might don't like doing them. हम यहाँ रुकते हैं। और आज का सेशन में आपने क्या सीखा? मेन पॉइंटर्स क्या आपको अच्छे लगे? बेस्ट वाली बात जो छू गई, क्विकली यू कैन शेयर। Is it this book? या Jagriti, यस, is it this एटॉमिक book? एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट, राइट, ये वाली। Can we read this next? हाँ हाँ, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। Because we are going through this habit breaking and all. So it will be helpful यस to यस यस, continue, those habits thing, na? पढ़ी हुई है मैंने, ये पढ़ी हुई है बुक, हाँ एटॉमिक हैबिट्स, हाँ। तो मुझे यही नहीं, वाली पर है। संग में पढ़ेंगे तो अलग होता है ना। चलो पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, देखते हैं, पढ़ेंगे। और भी दो तीन बुक्स के हम डालते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, ठीक सजेशंस। है। रूपाली आप भी डालिए, क्या बुक आप हाँ। पढ़ना चाहोगे, और स्मिता आप भी डालिए, सब लोग डालिए, लेट्स डिसाइड फॉर द नेक्स्ट हम्म। बुक। और आज फटाफट सेशन का हम रिव्यू करते हैं। आज हमने बात करा था स्टॉप वॉच की। स्टॉप वॉच इज टॉकिंग अबाउट टाइम। मुझे सबसे हम्म। बढ़िया बात लगी टाइम चोरों की, जो टाइम चोरी कर लेते हैं हमारा। Yeah, right. ठीक है, ये मुझे बड़ा बढ़िया वाला लगा। और पता भी नहीं चलता। Like this. हाय कैसे हो, हाँ ठीक हूँ, और बताना, हाँ नहीं नहीं हाँ, करते 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 मतलब हाय हेलो करके निकल सकते थे। आराम से 7 मिनट चले गए, 8 मिनट। ये छोटे छोटे टाइम लीकेजेस है। मुझे ये वाली बात बड़ी मजे आई। और किसी को बताना है और क्या बात आपको अच्छी लगी अबाउट टाइम हियर, मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी। एक है कि वो रिटर्न नहीं होता, मुझे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लगा। वो रिटर्न नहीं आता, वापस गया तो गया, दैट I इज like इट। the time one, the time stealing, uh, the time stealers and the leaks and the people who also, like there are so many people I know I should not answer this phone, नहीं तो गए काम से, बट फिर भी मैं हम्म, उठा लेती हूँ, तो आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट दैट नंबर कि ये नंबर सिर्फ उस टाइम उठाना है जब फुर्सत में है। परफेक्ट। और पंच लाइन ये है, डू नॉट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स। हमें इतना बड़ा मजा आता है ना, एक्साइटमेंट लगती है, जैसे ही हमें लगता है फोन बजा उठाओ। आपकी सुविधा के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए नहीं, कि दूसरे आपसे बात कर पाए। आप जब बात करनी हो तब आप उठाएं। आई लाइक दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी मच। ओके, तो आपने देखा फोन बजा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी क्या है ये देखना है। ये भी मुझे बहुत एक बढ़िया लगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको सेट करनी है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, चलिए हम कल सेट करते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, लेट अस क्लोज विद ग्रैटिट्यूड टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, to my teacher, to his teacher, to all the great great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to Robin Sharma, to all the participants, to beings of internet, beings of Zoom. Thank you, thank you, thank you, thank you for all your wisdom and guidance. Thank you to my family. Thank you to all the participants' family. Thank you to the people who are watching it online, recordings. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Good night. Thank you. Thank See you you. tomorrow morning. Bye bye. Bye. Bye.